afternoon, everyone, and a very warm welcome to all the panelists. Thank you for taking your time and be here with us to discuss this important topic of PR industry, which is value of PR and how does we measure its success. So in today's competitive world, the importance of PR is indisputable. And there's a very famous quote that it says, if you can't measure it, you cannot improve it. And we know the measuring PR success is very hard to quantify. In this case, metrics are the important tool that help us in demonstrating the value of PR campaigns. So I believe, like in your career, you also must have heard this question, and I believe it's the most hardest one to answer, that does PR actually work, and how do we measure its success? So in this regard, I'll present the first question of this panel, and we'll start with the most senior member of our panel, Dr. Sarvesh. So my first question is, what are PR metrics, and why is it important to measure the results of a PR campaign? तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. मेरे पड़ोस में शर्मा जी नए नए आए और पहले ही दिन मेरी मुलाकात उनसे हुई. मैंने नमस्ते किया. मेरे साथ में एक और पड़ोसी रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं. उन्होंने उनको पहली बात जो कही वो कही कि आपके रूम के बिल्कुल गेट पे गमले रखे हुए हैं, इसको प्लीज़ हटवाइए. हम दोनों का कन्वर्सेशन उन्हीं शर्मा जी से हुआ. एक दिन बाद शर्मा जी अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट से कह रहे थे कि 221 वाले तिवारी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, 222 वाले अलग तरीके के इंसान. पीआर की वैल्यू जो है वो अलग तरीके से कैलकुलेट होती है. कोई भी मैट्रिक्स, मेरा ये मानना है, ये मैट्रिक्स वैट्रिक्स वाला खेल जो है ये प्रोडक्ट्स में काफ़ी चलता है, बट बाकी चीज़ों में ख़ास तौर पे पीआर और कम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी आज की डेट में डिमांड हो गई है वो हो गई है क्राइसिस की. और आज आपको जैसे कहते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि तुम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, फिर भी तुम्हारी गाड़ी कोई ना कोई ठोक के निकल जाएगा. आपको हमेशा अपने लिए प्रिपेयर्ड रहना है क्राइसिस के लिए, और क्राइसिस की कोई मेजरमेंट आज की डेट में, कोई मैट्रिक्स नहीं हो पा रही है. तो मेरा ये मानना है कि बेसिक मैट्रिक्स प्रोडक्ट बेस्ड डिजिटल पे जो भी है वो आप मेज़र कर सकते हो, वो भी कुछ हद तक. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेल्ट वाटर की एक रिपोर्ट आती है, या ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स एनालिटिक्स करने वाली जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर इमोशन को, सेंटिमेंट्स को सही तरीके से आप अगर ध्यान से देखोगे तो कभी भी, मतलब 100 में 100% गलत निकलेगा. तो इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखा जाए तो पीआर के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए मालिकों को समझाना, उनकी परसेप्शन को बनाना कि भाई असली में पीआर होता क्या है, उसका इम्पैक्ट होता क्या है. आई फील दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी सेंसिटाइज, अवेयर अबाउट द एक्चुअल इम्पैक्ट. और वो बिल्कुल अलग होता है. बट बावजूद इसके मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ कि डेटा और नंबर्स और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ अंडरस्टूड. But apart from that, I wanted to bring out another aspect which is different from general thinking कि हाँ डेटा नंबर से हम मेज़र कर लेंगे और दे देंगे. एक दूसरा भी एस्पेक्ट है that I wanted to present. Good afternoon. Thank you very much, Dr. Sarvesh. While I agree with most of his points, I have my own experience which I wanted to highlight. I will first share an anecdote from the COVID days during lockdown. We all know how India was very instrumental in supplying COVID vaccines to all the friendly countries. So वो perception जो create किया गया, that was very much important. So that is what PR does. It's a long-term game. It's not a short-term activity, which is to be very well thought of. And many a times people do understand or relate digital marketing and PR as one or equal, whereas it is not the same. They do work hand in hand, but PR and digital marketing are separate. And the metrics are also very different for them. So the assumption or the summarization of my point is, हम पहले भी ये काम करते थे. We have been very friendly with our neighboring countries, but we were not getting that due recognition in the global arena, which is what PR is all about.
creating the impression which has a long lasting impression among your colleagues or your customers. Thank you. Shalini? Hi everyone. So I completely agree with both my speakers. I am an emotional intelligence coach, so I somewhere down the line feel that PR and emotional intelligence is similar when it comes to quantification. You can't quantify both of them to a certain extent, but of course there is a misconception that you can't quantify it completely, but of course no matter how hard you work and how much impact you have generated, still there are companies and there are people who would like to see the graphs and the data. So to understand the success of a PR, we need to have some data and we need to bring numbers to the table also. Sometimes, especially for a product like you said, but not for a personal brand to a certain extent. So PR metrics like website traffic, your social media mentions and your press coverage definitely tells you a lot about your target audience and the new behavioral trends. But I personally feel the main aim is to create an awareness, to create knowledge, to create interest, and finally to create an action, like the customer spending the money on the product or the service. Thank you. So, first of all, thank you for so much, for your interesting perspective and examples. So, in this, for example, when we measure the PR campaign metrics, so traditionally PR relied on metrics like impressions and advertising equivalency. So do you still think that these metrics or strategies are still relevant in digital age? दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिले हुए हैं. So most of the things have been answered in the last question, but I strongly feel that जो ये metrics की बात होती है, पहले तो PR और digital, जैसा कि भाई ने भी कहा कि दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है digital और PR में, या तो फिर सब मान ही ले कि PR ही है, उसी का पार्ट digital है, जो उसकी acceptability है नहीं. So कभी भी market जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कभी भी नहीं होती पब्लिक रिलेशन के काम को लेके, एक दूसरे तरीके से होता है, वो हमेशा सब कुछ क्वांटिफाइबल मांगते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, में नाम नहीं लूँगा, बट भारत के टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में कहीं हम लोग काम करते हैं, और वहाँ पे जो बॉस थे वो हर महीने के एंड में हमारी रिपोर्ट्स को, डेनिस बैठे हुए, डेनिस हम लोग साथ थे, वो शर्मा जी, अगेन वो भी शर्मा जी हैं, किस्मत है, पर हर महीने के एंड में वो हमारी जब रिपोर्ट आती थी तो उसके अंदर कहते थे इसमें डेटा, ग्राफ्स, ये वो यहाँ ऊपर है. तो हमने क्या किया कि 25, 30, 40 पेजों का एक ग्राफ डेटा वाला रिपोर्ट बना दी, जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आता. आइडियली भ्रम है, और उसी भ्रम में सारे जी रहे हैं. सच्चाई ये होती है, इम्पैक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन द पेपर. आई ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्लोबल एजेंसीज. आई हैव बीन वर्किंग विथ फ्यू UN ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब वो खुद कहते हैं कि ऐसा कागज बनाओ कि हमारा बॉस जो बैठा वो देख के खुश हो जाए. दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट दैट. सो ये मैट्रिक्स वैट्रिक्स बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए एंड होती भी है. एट द सेम टाइम अभी जो बेसिक न्यूएंसेस हैं, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जो ग्राउंड की सच्चाई है, उन सब पे वी ऑल नीड टू बी फोकस्ड मोर. एंड एक जांचने और मापने का जो तरीका होता है वो भी हमें तय करना चाहिए. आई थिंक वी नीड टू रीडिज़ाइन इट. अब कैसे रीडिज़ाइन हो सकता है, दैट इज़ द क्वेश्चन. तो फॉर एग्जाम्पल एक क्राइसिस आता है, आप लोग गुड़गांव में आए हैं, एक टोल है यहाँ पे सामने, थोड़ी दूर आगे जाएंगे एक और टोल आता है, मानेसर का टोल. इस टोल के ऊपर एक कैंपेन शुरू हुआ था इस टोल को हटाने के लिए. टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया, ST फॉलोड इट, और एक बैड PR की वजह से, उसमें नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं थी, बैड PR रिजल्टेड इन रिमूविंग द टोल एट लीला. और वहीं पे एक दूसरा टोल भी है जिसके लिए सही से PR कैंपेन नहीं हुआ, तो वो आज भी चल रहा है, वो मानेसर का टोल है, जबकि वहाँ पे इतनी सारी नई डेवलपमेंट हो गई, न्यू गुड़गांव बन गया. अब इन दोनों चीज़ों को अगर मापना हो कि कैसे संभव हुआ, आप गूगल सर्च कर लो,
मेरे को एक रिपोर्ट दिखा दो, यू विल नॉट बी एबल टू लोकेट एनी रिपोर्ट. बट बिजनेस डैमेज और बिजनेस प्रोटेक्शन कितना हुआ, दैट इज वर्थ thousands of crores, which means that large projects जहाँ पे इतने बड़े बिजनेस हैम्पर्स हो सकते हैं या प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे क्वांटिफाई करने का कोई कागज नहीं है, कोई मैट्रिक्स नहीं है. सो आई humbly request all the leaders of the industry that आप सिर्फ कागजों के चक्कर में ना पड़ो, आप सही में इम्पैक्ट के बारे में सोचो. एंड दैट इज माई टेक ऑन इट. So in this regard, like I would ask all the panelists that if not the metrics, what other, because measuring impact is equally important. If you are running a campaign, PR campaign or any other campaign, like measuring its impact, its success, or how much is it relevant for the brand or the audience, it's equally important. So other than the metrics, what other strategies we can follow? So Ritika, what I feel is public perception is very much important. So when we are talking about the PR campaigns, first and foremost, it is important to understand what we are trying to achieve with the PR campaigns. For example, if somebody is trying to make sure to have their customer loyalty increase, that is one of the campaign outcome which somebody could measure, which of course would happen with any of the enterprise, be it an established one or a new age enterprise as well. And that is exactly what happened with us as well. Being a fairly new age startup, we did feel that having the PR campaign complements the product we are building. And what happens is it has a recall value when you go to the market. So when we went out to the market and started competing with the likes of big tech giants, we feel that having the public perception helps in penetrating the product into the enterprise. So ये बहुत important होता है that if you're trying to have a customer loyalty maintained for your product or the enterprise, then ये एक metrics है which I feel is very much important as a PR metrics. So I personally believe more than the metrics and the KPIs, I believe that the planning at the initial stage is very important, like Mr. Animesh said. Because if we are clear from the very start what we want to achieve out there, we can actually devise a very great PR strategy. And like I'll give you a very small example as a personal branding, because I'm not talking about the products here, but sometimes we use social media mentions and the influencer marketing also as a part of PR. But sometimes on paper there is not so much engagement to show and not so much content analysis to show. But you get so many customers or prospective people because of your one video or the way you have projected. So on paper, like Dr. Sarvesh said, on paper sometimes it will not depict what exactly the real situation had been. So we have to see a lot of things, like we have to be very clear as to what we are there to achieve, and it is very different for everyone. Some people want to have the sentiment analysis, some people want to sell a particular thing, some people just want to create a brand awareness. आई थिंक जो मैं बोलना चाहता था दोनों ने कहा है. सो सबसे पहली बात है कि आप इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. सो मेरी जो गुजारिश है वो सिर्फ इतनी है कि हमने एक फिक्स पैरामीटर्स बना लिया है कि कोई भी काम आप अगर पॉलिटिकल काम कर रहे हैं तब भी आप उसी तरीके से एनालिसिस करके लेके आओ, आप प्रोडक्ट का कर रहे हो तब भी, स्टार्टअप का कर रहे हो तब भी, पर्सनल ब्रांडिंग का. सो सबको एक तरीके से नहीं जांचा और मापा जा सकता है, हर का तरीका अलग होता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि अगर प्रोडक्ट की परसेप्शन की बात करनी है, उसके बारे में करना है, तो डेटाज, नंबर, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर अगेन हमारा पहला डिस्कशन वर्ड जो हमने शुरू किया वो पीआर शब्द से शुरू किया. पीआर का होराइजन बहुत बड़ा है, बट आज की डेट में बहुत स्ट्रांगली बांट दिया गया है पीआर को और डिजिटल को. जब हम पीआर कैंपेन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले भी हमें समझने की ज़रूरत है. उसमें छपना छपाना खबर तो आता ही है, दैट इज़ बेसिक. अपार्ट फ्रॉम दैट आप किस तरीके से परसेप्शन बनाते हो, लोगों से मिल के, लोगों से दूर रह के, लोगों से कह के, चुप रह के, बहुत तरीके हैं वो कहने के. सो उन सारे तरीकों के सामंजस्य को, amalgamation of all those things brought together, then what comes out is the result and outcome. वो
बहुत अहमियत रखती है। और ऐसी चीज़ों में मैं खास तौर पे बोलूँगा कि जो परसेप्शन की बात अनिमेश गुप्ता जी ने करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप परसेप्शन की एनालिसिस कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं बाद में कि पहले लोग कैसा सोचते थे, आज कैसा सोचते हैं। दैट विल गिव अ डायरेक्ट आउटकम। जैसे आजकल इवन प्रोडक्ट में भी मैंने रिसेंटली एक यूएई की कंपनी थी जो मेरे पास आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ कोलेबोरेट कर लो और हम रिटेल इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हैं साथ में। तो उनका क्या था कि कस्टमर फीडबैक, क्योंकि आप नहीं जानते हो ना कि बैठ के जो उंगलियों से लोगों ने टाइप किया है वो कौन लोग हैं। आज की डेट में इवन सर्वे में भी बैठ के लोग, मतलब हम तो रोज देखते हैं किस तरीके से सर्वे होती है, किस तरीके से डिजिटल नंबर्स आते हैं। मासेस है, बल्क में लोग पुशर्स बैठे हुए हैं जो डिजिटली पुश करते हैं चीज़ों को। दे आर नॉट एक्चुअल, दे आर नॉट ऑर्गेनिक थिंग्स, दे आर नॉट ऑर्गेनिक पीपल। सो आपका सारा का सारा परसेप्शन, जो मैं भ्रम शब्द का इस्तेमाल किया, वो भ्रम पैदा करने के लिए डिजिटल युग में बहुत सारा स्पेस हो गया है। उसको तोड़ने के लिए हर चीज़ में आप उसी डिजिटल भ्रम के साथ नहीं जा सकते हो, आप फेल कर जाओगे। इसलिए आपको बनता है कि आप इस तरीके के 1-to-1 एसोसिएशन, रिलेशनशिप, बिजनेसेस के इम्पैक्ट, पत्रकारों से, हम पीआर में तो पत्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज ऑफ जर्नलिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसा कह रहे हैं किसी के बारे में, क्योंकि वो 50 जगह जाते हैं। अगर एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, वो उसको लेने वाले के पास भी जाते हैं और जो खरीदता है उसके पास भी, जो बेचता है उसके पास भी जाते हैं। तो उससे अच्छा रिव्यू कौन दे सकता है? बट हम वैसे अटेम्प्ट्स नहीं करते हैं। हम बैठते हैं डिजिटल पे, गूगल एनालिटिक्स डालते हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट निकालते हो देते हैं। यानी सुविधा का सारा खेल है। और बिलीव करो, आप अच्छी चीज़ों को हमेशा देखते हैं, बट इन सब चीज़ों के वजह से कितने मास फेलियोर्स हुए हैं वर्ल्ड में। आज आप गूगल ही करके देख लेना, एनालिटिक्स, फेलियोर्स ऑफ एनालिटिक्स डाल के देखना, आपको 1000 केसेस आ जाएंगे जो फेक एनालिटिक्स के ऊपर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स ग्लोबली फेल हुए हैं। सो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्लान बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाती है तो बहुत रिसर्च करती है, ये सारे एनालिटिक्स करती है, पर फिर भी क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि उसका एनालिटिक फेक होता है। सो लेट अस आज के टॉपिक के हिसाब से पीआर पे फोकस रखते हैं, और पीआर रिश्तों का खेल है। मैं हमेशा ये कहूँगा, रिश्ते बनाइए, आगे बढ़िए। Thank you for the interesting perspective. So, in this regard, I want to know, other than the PR metrics, I really want to know how do you personally measure the impact of your PR campaign, or state the value of PR? सारा मेरे से ही पूछो। Shalini, let's start with you. Okay, great. So, so how do I measure in my field? Is that your question? Yeah. So in my field, as a self-employed professional, I would first measure it on the awareness part, like how much awareness the PR has created, like what I do. So in the education sector and in the corporate sector, like how many people would be knowing about it. So like in the press mentions or in the social media mentions. Then the kind of perception through the knowledge, through the articles what are being printed, like what kind of a perception is being formed. वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर like the word soft skills, कई लोगों को पता ही नहीं है soft skills क्या है, तो emotional intelligence is just a small aspect of soft skills. So how do people perceive it is very important. So creating the right kind of knowledge is definitely important, and then creating interest, that is also something. Of course, I mean, we can't deny the fact कि ब्रांड में भी दम होना चाहिए टू एक्चुअली क्रिएट दैट इंटरेस्ट, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल पीआर का भी इसमें हो जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि एक आप कैसे उसको इंटरेस्ट करें, एंड बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स द प्रेफरेंस ओवर one personal brand over the other, because ultimately in every field, बहुत सारे competitors हैं. So how does the consumer chooses one particular over the other one? And the last is the action, definitely spending the money on the brand or the product or the service. Right. So my take on this one is, I typically measure 3 important metrics, I would say. First one is the customer engagement on any of the PR campaigns we do, because it is very important to have that human touch whenever you're doing a PR campaign.
all these analytics, like Dr. Sarvesh said, is all fine, but if you do not have a human interaction or a personal appeal to it, it will not going to have or bear any fruit in the future. So that is what is something very important for us or for me as a founder. Now, the other two important metrics which I typically look after is how well the customer is engaging with the product or the services. We have to always have a very honest and transparent feedback from the customer. Of course, we may go wrong somewhere, but having the perception or the feedback taken in a very constructive manner is what really helps build a long-term perception about a brand. This is the second metric which we usually track. The third one being the storytelling aspect of the PR campaign. So हम कुछ भी campaign कर रहे हैं, it's very important to tell a story that it is solving some problem for the user or trying to connect with the user. Rather than just pushing the content or the campaigns to the end consumer to consume, it should always convey a story to tell. These are the three ones, which we typically look after. So, सबसे पहले तो जैसे मैं खुल के बोलता हूँ तो मेरा कैंपेन हमेशा जो सच है वो बोलने की कोशिश होती है अपने लिए अगर देखें तो। अब ब्रांड की बात आती है तो मैं बहुत सारे रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन देखता हूँ। ऑलमोस्ट 21 रियल एस्टेट कंपनीज का पीआर हम देखते हैं। और आज से करीब 2 साल 2.5 साल पहले तक कोई भी घर खरीदने को राज़ी नहीं होता था। लोग कहते थे सारे बिल्डर चोर हैं, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता था और एक परसेप्शन थी। पर आज देखोगे आप तो एक बाड़ लगी हुई है, जो 1 रुपये का सामान था वो 4 रुपये का हो गया। और फिर भी हम रोज़ जद्दोजहद में हैं कि वाई नॉट आई बी द फर्स्ट वन टू टेक दिस। ये जो परसेप्शन और सेंटिमेंट्स चेंज हुआ, ये सिचुएशनल भी था कि कोविड आया, कोविड के बाद छोटे से बड़े घर, मैं मानता हूँ बड़े घर, बट दुकानों का क्या है? दुकान तो नहीं सोचता है ना कि कोविड आया इसलिए 2 दुकान भी खरीद लें, बट दुकान भी लोग खरीद रहे हैं, ऑफिसेज भी लोग खरीद रहे हैं। तो क्या होता है कि हमने एक प्रैक्टिकल अपनी भी बात रखने की एक जगह बनाई कि भाई रियलेटर्स की भी अपनी समस्याएं हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें मैं एक ज़रूर बात कहूँगा, सेंटीमेंट एनालिसिस देखो आप कहाँ फेल होता है, ये डिजिटल वाला जो फेलियर है। अगर एक FIR हो जाता है एक डेवलपर पे और वो FIR से छूट जाता है तो अगले दिन अगर खबर छपती है कि इसकी कोई गलती नहीं थी और छूट गया FIR में, बट आपका जो एनालिटिक है वो उसको नेगेटिव में डालता है, जबकि वो एक पॉजिटिव स्टोरी है हमारे डेवलपर के लिए। तो जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट के सेगमेंट में ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव सेगमेंट में वो ही हैज़ बीन एक्विटेड माने छूट जाना होता है ना, मेरी अंग्रेजी थोड़ी तंग है। तो बट द सेंटिमेंट्स गोज नेगेटिव, और इफ देयर इज इवन अ क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क किसी स्टोरी में अगर लगा दी जाती है तो सेंटिमेंट उसको नेगेटिव कर देता है। सो मैं घूम फिर के वहीं आऊँगा कि मैं कैसे जज करूँगा अपने कैंपेन को। डेली प्रोग्रेस किस तरीके से मूव हो रहा है। दूसरा, अगर मेरी वेबसाइट है, मेरे पेज हैं, उस पर कितने लोग वापस आ रहे हैं, मेरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर वो क्या कह रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है मेरे प्रोडक्ट के, जैसे मेरा अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो हम एक अपना सेल एरिया बनाते हैं, तो वहाँ कितने लोगों का फुटफॉल बढ़ गया, वो डायरेक्ट रिजल्ट है। और ये सब मेजरमेंट्स के टूल्स हैं और इम्पैक्ट ये है कि सामान बिक जाता है लास्ट में। परसेप्शन, बड़ा इम्पैक्ट क्या है, परसेप्शन बदल गया कि नहीं सारे ऐसे नहीं है, सारे गड़बड़ नहीं है, ये 10 लोग तो क्लीन है। वो 10 लोगों को क्लीन बनाने का जो काम हमने किया वो PR के कैंपेन के थ्रू किया और उनका सामान खूब ज़ोरों से बिक रहा है। एंड द रिजल्ट, तो तीनों स्टेज मैंने बताया कि पहले तो प्रोग्रेस, दूसरा फुटफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखें तो, और उसके बाद रिजल्ट। इन सब का एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है कि पिछली बार जब हुआ था तो क्या हुआ था, कितने बिके थे, कितने लोग आए थे, वो कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि एनालिटिक्स हमेशा फेल नहीं होता, मैं विरोध में ज़रूर बोल रहा हूँ कहीं कहीं, बिकॉज हम मार्केटियर्स एक फिक्स सेंटिमेंट से ना चले, वो सेंटिमेंट गलत भी हो सकता है। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक देम अवेयर, आगाह करने की कोशिश थी कि आप उससे सब कुछ सच ना मानो, अलग भी होता है।
So I think what I have concluded till now after hearing views of all the panelists that we shouldn't just rely on PR metrics to measure the effectiveness of PR campaigns. So I'll quickly move to the last question of this panel. And I would like all of you to express your views on how we can re-establish the value of PR, like other than using PR metrics. I'll just be brief over here. So, of course, how do we establish solid PR? Of course, there has to be, first we have to believe in our product and our brand, and we have to be very sure of what we are trying to achieve out there. And we need to have everything in place also, like the perception and all, we need to be very clear. Because if we are very clear, our objective is very clear, and the way we give it to the PR organizations, half of their work is already achieved. So we need to be very clear. आई थिंक मालिकों को समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मैं कहूँगा ओनर्स का परसेप्शन है ही नहीं पीआर के लिए, वो समझते नहीं पीआर, द वैल्यू फॉर पीआर विच यू आस्क कि भाई सबसे बड़ी तो पीआर पर्सन की वैल्यू है कि नहीं, ये देखने की बहुत ज़रूरत है. तो वी नीड टू कन्विंस देम दैट द इम्पैक्ट विच पीआर्स ब्रिंग इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है. आज एक, चूंकि मैं डेवलपर की बात कर रहा हूँ, एक यहाँ पे डेवलपर है, यहाँ पे एक डीएलएफ है, ये 3 करोड़ का सामान बेचता है, 5 करोड़ का, सेम सामान, सेम प्रोडक्ट, सेम लोकेशन, सेम चीज़ें, पर उसने वैल्यू करी पीआर की. उसने समझा कि मेरे को लॉन्ग टर्म में एक ब्रांड बिल्डिंग करनी है, अपनी पोजीशनिंग करनी है, एंड दे वेंट थ्रू प्रोसेस, उन्होंने वैल्यू समझा. सो आज जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम सब के लिए है वो है कि हम ओनर्स को, फाउंडर्स को, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, whosoever we are reporting, convince them कि भाई इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. आप पूरे प्रोजेक्ट का 10%, 2%, 1% मार्केटिंग बजट निकाल देते हो, बट पीआर के बजट के वक्त आप सोचते हो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख में काम चला ले. तो आप समझो कि आपकी अहमियत उस ब्रांड के लिए कितनी है, बट जबकि आप इतना बड़ा काम करके देते हो. सो हमें वो कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है कि पीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपके ब्रांड इमेज में इतना बड़ा वैल्यू ऐड कर सकता है जिससे आप पूरे लाइफ इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो. Great. I second the opinions of both my panelists, and I would repeat my initial sentence which I said. PR is a long-term activity. It is never an overnight thing. We always have to spend time, तभी उसका result भी हमें मिलेगा. Now, what I feel and what in my opinion is that building a reputation or a brand awareness has a long-lasting impact in the future, because the kind of exercise which we do over a course of time will have a very fruitful result in the future, and that would help bring repeat customers to you. That is what PR is going to help if we maintain it very strategically. So that is what I would like to summarize. I'll just say one last Yeah, line. sure. Not to hurry, Dr. Sarvesh said, not to hurry in getting the results of the PR. It's a very long thing, and not everything can be quantified. The idea of quantifying everything, it gets somewhere in between the goal of achieving something. Something sometimes takes a longer period of time, but the impact is far-reaching as compared to numbers. लास्ट इवन किसी ऐसे ही स्टेज पे बैठ के मैंने बोला था, जर्नलिस्ट का नाम मैं भूल गया, यूएस का एक कैंपेन है बहुत पॉपुलर, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक प्रोडक्ट था, उसकी एक सर्टेन कीमत थी, फॉर एग्जांपल उसके $8 पर आइटम का कॉस्ट था, और उस जर्नलिस्ट ने क्या किया कि एक कैंपेन किया, उसने क्या किया, अपने सारे फ्रेंड्स को बोला इसको पीआरेबल बना दो और उसके ऊपर कंटेंट लिखो अच्छा सा इस प्रोडक्ट के ऊपर. ही शेयर्ड इट विथ 100 पीपल और उन लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा, और उसके बाद उसने वही प्रोडक्ट को ईबे में ले जाके 7-8 गुना ज़्यादा कॉस्ट पे डाल दिया और वो सारा प्रोडक्ट निकल गया. विच मीन्स जब उसने परसेप्शन बनाया, उसने उस चीज़ के अंदर कंटेंट डाला, उस चीज़ के अंदर पीआर का एलिमेंट डाला, सो वो प्रोडक्ट बड़ा वैल्यूएबल हो गया. बट ये मालिक लोग नहीं समझते.
अगेन फिर वही कहूँगा कि इतना वैल्यूएबल है, इतनी इंपॉर्टेंट टूल है पीआर, उसको मैजिक कर सकता है, पर समय है, धीरे 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 सब सीखेंगे. Yeah, so thank you so much all the panelists, and I think this is the conclusion. So thank you so much for having us.